Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis by Level Up, which we conduct from every Monday to Friday. So the first page of the of 17th of July talks about that government merges 36 schemes to float farm plan. अभी देखो, तो हमारा यूनियन बजट आया था ना, हर साल बजट आता है। जैसे आप अपना बजट बनाते हो, ऐसे सरकार भी अपना क्या बनाती है, बजट। अब क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेयर इज इट मेंशनड? आर्टिकल 39B and 39C of the Indian Constitution. Very important for your examination. Which are DPSPs, which are DPSPs. DPSPs पे completely पढ़ना है तो either you can study from any coaching that you are study या legal में पढ़ा है तो जाता ही है. The term budget not mentioned in the constitution per se. Budget को हम बोलते हैं annual financial statement and it is given under article 112 of the Indian Constitution. So the government of India or the finance minister of India every year tables the budget for the country. तो बजट में इस साल हमने एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि was released in the budget of 2025-2026. Which budget? Union budget. Union budget. Union budget में we got this scheme by the name Pradhan Mantri Dhan Dhanya scheme. Now what is this scheme? Dhan Dhanya scheme. What is this scheme all about? तो आप सबने शायद सुना हो, इंडिया में एक स्कीम चलती है बाय द नेम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. Now, what do we mean by aspirational? Aspirational is something which you aspire for. So, if someone's there who is aspiring for something, he will be called as aspirational. कि भाई उसको ये करना है. तो इंडिया में जो हमारे लीस्ट सबसे अंडर डेवलप्ड 100 districts of India. So, this scheme is for the underdeveloped. इसके लिए इंडिया में एक स्कीम चलती है which is called as aspirational district program. अब इंडिया has seen significant growth in this स्कीम. इसी स्कीम को कॉपी करके हमने क्या किया, जो भी हमारे काफ़ी सारे स्कीम्स थे विच वर फॉर फार्मर्स. नाउ वी नो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल डोमिनेंट कंट्री बिकॉज 60% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड अंडर एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो हमें फार्मर्स का खास ध्यान रखना है. इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो फार्मर्स से रिलेटेड 36 स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, इन सबको मर्ज कर दिया एंड दे हैव मर्ज्ड इट बाय द नेम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना. So just remember this fact that 36 of the Indian of 36 of the schemes, 36 of the agricultural schemes now have been clubbed in the form of Pradhan Mantri Dhan Dhanya Yojana. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Yojana. The Pradhan Mantri Dhan Dhanya Yojana would be on the similar lines of aspirational district program. This is also very important for you. Aspirational district program. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारे least developed 100 districts होंगे. Least, when I say least developed, I mean to say in agriculture. So they are not very developed in the agricultural sector of India. So we will try to work upon increasing their productivity. Production तो है, productivity कम है, per hectare quantity कम है. We will focus more on the research and development. We will try to get in better seeds. We will try to get in better seeds. We will try to look for better markets for these farmers, right? So a lot of things would be done which would ultimately help the farmers, which would ultimately help the farmers. Just remember about this scheme. Read this article if you want to. अच्छा, ये याद नहीं करना है. So we are focusing upon increasing the productivity. We want to diversify our crops. It is said that we should not keep all our eggs in the same basket. In the same way, we'll try to diversify our crops so that the farmer is aware about multiple crops. He has better access to the markets. Then we focus upon sustainable agriculture practices. Agriculture which is not harming the environment per se. So we'll try to decrease the use of fertilizers. फर्टिलाइजर्स पे मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करिए बताया था, एमोनियम डाईफॉस्फेट है ना, फिर आपको मोटर ऑफ फॉस्फेट बताया था, एमओपी बताया था, देन आई टोल्ड यू अबाउट नाइट्रोजन ऑल्सो, है ना. तो एनपीके. तो ये फर्टिलाइजर्स पे हम अपना डिपेंडेंसी कम करेंगे एंड वी वुड बी एलोकेटिंग 24,000 करोड़ रुपीज एनुअली. So every year the government of India will spend 24,000 crore rupees on this Pradhanmantri Dhan Dhanya Yojana, Pradhanmantri Dhan Dhanya Yojana, and this shall be for the next 6 years. So this scheme shall be from 2025 till 2031. And one more thing, this Pradhan Mantri Dhan Dhanya scheme is a central sector scheme, central sponsored scheme, central sponsored scheme, central sponsored scheme. Central sponsored scheme means that in this scheme the money would come from both the central and the state governments, both the central and state governments. If I would have said that this is a central sector scheme, the money would have been coming from the central government only, just like Pradhan Mantri
पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना। ये पीएम किसान योजना में क्या होता है, आपको 2,000 रुपये मिलते हैं एवरी 4 मंथ्स, विच मीन्स यू गेट इन टोटल 6,000 रुपीज एवरी ईयर पर एनम, एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑल द फार्मर्स, वेदर रिच और पुअर, ऑल फार्मर्स। कम ज़मीन हो ज़्यादा ज़मीन हो, आप बस किसान होने चाहिए, आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, विच मीन्स इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बट प्रधानमंत्री धन धान्य योजना इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। यूनियन बजट में इस बार आई थी। यूनियन बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज टेबल्ड एवरी ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। चलो, तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू स्टडी इन योर लीगल पार्ट, और बेसिक बेसिक ये जो न्यूज़ है वो यही कहती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के वी रीड दिस आर्टिकल, दिस बिकम्स अ केक वॉक। चलो, नाउ that is it. So welcome to what a day of 17th of July 2025. This session becomes extremely important for your examination. Chalo, now let us understand the first topic which talks about global capability centers. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए वी रिक्वायर 4 थिंग्स। दीज 4 थिंग्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को आपको बनाना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए। आपको एक तो लैंड चाहिए, चाहिए। आपको लेबर भी चाहिए होगा, लेबर आपका स्किल भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। देन यू रिक्वायर लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कैपिटल, और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए चाहिए एंटरप्रेन्योर। वही इन सब सारी चीज़ों को जोड़ेगा और कुछ प्रोड्यूस कर देगा। लैंड विल टेक इट्स रेंट, लैंड विल टेक इट्स रेंट, लेबर विल टेक इट्स वेज और सैलरी, कैपिटल विल टेक इट्स इंटरेस्ट, कुछ ब्याज पे आएगा ना कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर शैल टेक हिज प्रॉफिट और लॉस। So that is that there are 4 factors of production. तो हर कंपनी चाहती है, every company wants to maximize their profit, maximize their profit. Now since I want to maximize my profit, either I have to increase the price of my good, ये 10 रुपए की चीज़ 20 में बेच रहा हूँ तब तो प्रॉफिट बढ़ता है, या तो फिर प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका है महंगा बना के बेच दो, या तो दूसरा तरीका है अपना इनपुट कॉस्ट कम कर दो। जब लेबर का सैलरी कम कर दिया, रेंट कम कर दिया, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं विच आर मल्टीनेशनल कंपनीज। व्हेन आई से मल्टीनेशनल मतलब मल्टीपल नेशंस, जो एक देश से ज़्यादा में काम कर रही हैं। कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो दीज कंपनीज आर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को भी क्या बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके बताए, इधर यू इंक्रीज द प्राइस, प्राइस इंक्रीज करोगे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, कोई दूसरा सस्ते में बेच देगा, या फिर इनपुट कॉस्ट कम कर दो। इनपुट कॉस्ट कम कर दोगे, मान लो ये पेन 5 रुपए का बनाता था 10 में बेचता था, अब ये पेन 3 रुपए का बना रहा हूँ 10 में बेच रहा हूँ, 7 रुपए बन गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो इनपुट कॉस्ट कम कर दो। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनको भी क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट बढ़ानी है अपनी। प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका क्या है, इनपुट कॉस्ट कम कर दो। इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए ये क्या करती हैं, अपनी कुछ सब्सिडरी कंपनी बना देती हैं। सब्सिडरी मतलब मालिक वही है, बस एक कंपनी और बना दी, है ना, अपना ही मान लो एक छोटा बेटा टाइप का सब्सिडरी कंपनी बनाती हैं, और इनको ये ऐसे मार्केट में रजिस्टर कर लेती हैं जहाँ पे लेबर चीप हो। अब इंडिया जैसे कंट्रीज में लेबर चीप है, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, कम रेट में आ जाती है। बहुत बड़ा मार्केट भी है इंडिया, है ना। फिर यहाँ पे इंडिया का जो यूथ है वो आप भी जानते हो, यहाँ पे कितने इंजीनियर्स मिल जाएंगे, कितने बीएससी ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे। तो एक फील्ड होती है स्टेम, स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। इस फील्ड में आपको इंडिया का यूथ बहुत मिलेगा। तो कंपनीज को पता है यहाँ पे चीप लेबर मिल जाएगी इंडिया में, तो ये बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज खोल के इंडिया जैसे कंट्रीज में रजिस्टर करा लेते हैं, और इन्हीं सेंटर्स को बोला जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर नहीं खोला, बट एक होली ओन सब्सिडरी खोल दी इंडिया जैसे देशों में, ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएं, प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। अब आर्टिकल इस बारे में बात कर रहा है कैसे हम अपने कंट्री में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और बढ़ा सकते हैं। अब देखो, इसको पढ़ो। रिसेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है, निर्मला सीतारमन, एट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अच्छा, सीआईआई क्या है, सीआईआई इंडिया में बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, अंबानी अडानी टाइप के, इन लोगों का ग्रुप है, और बहुत अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है। उसका एक इवेंट हुआ था, तो उसमें इन्होंने बोला कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ये ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, बहुत सारा ऐसा यूथ है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में बढ़िया है, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग आती है। तो दीज पीपल विल कम एट अ वेरी लेस कॉस्ट, सिंस दे विल कम एट अ लेस कॉस्ट, देयर प्रॉफिट शैल इंक्रीज। सो अ लॉट ऑफ एमएनसीज विल ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर जीसीसीज इन इंडिया, जीसीसीज इन इंडिया, यही तो बोल रहा है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक यूनिट। जीसीसी क्या है, एक स्ट्रैटेजिक यूनिट है। स्ट्रैटेजिक यूनिट मतलब कंपनी कुछ होशियारी से बना रही है, कुछ फायदा है उसको। इट सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली उसके ग्लोबल ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। मतलब मान लीजिए मेरा एलजी का फ्रिज है ना, एलजी इज अ कोरियन कंपनी, अब मेरा फ्रिज खराब हो गया, तो पीपल माइट कॉल माई सर्विस सेंटर। सो व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई टू हैव द सर्विस सेंटर इन इंडिया, बिकॉज दीज पीपल आर गुड एट
स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। तो अब जो चीज़ मेरे को मान लीजिए यूएस यूके में इंडियन करेंसी में 50,000 की एम्प्लॉयमेंट पे मिलती, सैलरी पे मिलता, वो इंडिया में मेरे को 15-18 हज़ार में मिल जाएगा, मेरा प्रॉफिट मेकिंग बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए, तो जो जीसीसीज क्या होती हैं, ये होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड मतलब मालिक कौन है, एमएनसी, बस उसने दूसरी कंपनी बना दी है, होली ओन्ड है, ओनर वही है। ऑफ शोर का मतलब होता है अपने देश के बाहर। मान लीजिए गूगल है, गूगल इज एन यूएस कंपनी, बट टू मिनिमाइज इट्स इनपुट कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट, इट माइट ओपन इट्स ओन ऑफ शोर यूनिट। ऑफ शोर यूनिट मतलब नदी के पार यूनिट, तो यूएस के नदी के पार यूनिट इंडिया वगैरह में डाल दो। समझ में आया यहाँ तक? अब आप देखो मेजर जीसीसी प्लेयर्स इन इंडिया जिनका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। फाइनेंस में देखोगे तो एमेक्स कार्ड सुने होंगे आपने, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी है, सिटी बैंक है, एचएसबीसी है ना। कंसल्टिंग में देखोगे देर इज मैकेंजी, देर इज केपीएमजी, डेलोइट, जेपी मॉर्गन, बिग फोर जो पीडब्ल्यूसी। फिर इसके बाद अगर आप आईटी में देखोगे तो हमारे पास आईबीएम, टीसीएस, डेल जैसी कंपनीज है ना। तो इंटरनेट में आप देखोगे वी हैव गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब ने अपने ऑफिसेज इंडिया में बना रखे हैं, इन सब ने अपनी जीसीसीज, इन्होंने सब ने अपने global capability centers, they have it in India. All of these have their global capability centers in India. Now this number will increase in the coming years. That is why finance minister of India is saying that we shall shift our focus on GCCs. We should make more and more GCCs. चलो, understood. अब यही है एवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें पैसे बचाने थे, हमें पैसे बचाने थे। पहले ये हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में जीसीसी इसलिए होते थे कि इन्हें कॉस्ट सेविंग करनी होती थी, जो मैं तब से बता रहा हूँ। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू स्ट्रेटेजिक रीजंस आल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियन यूथ इज नाउ वर्किंग ऑन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑल्सो, इज वर्किंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑल्सो। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यों इंडिया के लिए जीसीसी फ्यूचर है। हमारी जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है उनको बोलते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज। फॉर्च्यून एक मैगजीन है जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हर साल बताती है। में से लगभग 50 कंपनीज, मतलब इन 500 में से लगभग 250 कंपनीज का जीसीसी इंडिया में खुला हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीसीसी इंडिया में चीप लेबर वर्कफोर्स है ना। अच्छा जीसीसी जो बने हुए हैं इंडिया में, इसमें लगभग लगभग 20 लाख 21 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो इट हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 21 लाख पीपल इन इंडिया। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 2.8 मिलियन, मतलब 2030 तक ये 28 लाख का अनुमान है कि इसमें 28 लाख लोग नौकरियां कर रहे होंगे। कब तक? 2030 तक। अभी क्या चल रहा है? 2025। मतलब अगले 5 साल में इसमें 7 लाख नौकरियां आनी है, 7 लाख नौकरियां बढ़नी है। चलो, नाउ दिस हैज़ इंक्रीज बाय 11%। हर साल जीसीसीज 11% से बढ़ रहे हैं। दुनिया के जो स्टेम के ग्रेजुएट हैं, है ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं, उसमें लगभग 32% इंडिया से ही आते हैं। तो 100 बच्चे अगर साइंस पढ़ रहे हैं दुनिया में, तो 32 बच्चे इंडिया में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे फीमेल इंपावरमेंट भी बहुत होगा, क्योंकि ये जो साइंस वाले सेक्टर है ना, ये जो स्टेम सेक्टर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें 42% जो भी, अगर इंडिया में 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं इसकी, तो 42% कौन है? फीमेल्स। 42% आर फीमेल्स। तो जब जीसीसी बढ़ेंगे, स्टेम का बोलबाला बढ़ेगा, तो ये 42% का भी बढ़ेगा, तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट, फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट होगा। इसको आप पढ़ सकते हो, जो भी मैंने आपसे बोला है वो सब कुछ यहाँ पे मैंशनड है। याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस फोकस करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड वर्किंग और स्टार्टेड शिफ्टिंग इट्स फोकस अपॉन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। हम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, जब उनको अपनी कॉस्ट प्रोडक्शन को बचानी होती है, तो वो एक कंपनी और रजिस्टर करते हैं, अपनी पेरेंट कंपनी बन जाते हैं। पेरेंट कंपनी की जैसे चाइल्ड डॉटर कंपनी बनाते हैं, उसके मालिक खुद रहते हैं, उसको रजिस्टर उन देशों में करा देते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको थोड़ी चीपर रेट पे एक्सेसिबल हो। चलो, यू कैन रीड दिस। हाँ, अब इसमें देखो क्या है, याद हमें कुछ नहीं करना, फिर भी पढ़ लीजिएगा। बस इसमें देखो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये कह रहा है एक बॉडी है इंडिया में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इंडिया में जो भी मेडिकल के लिए रिसर्च होती है, उसमें इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आईसीएमआर। तो ये आर एंड डी में काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई दवाइयाँ बनाएगा, नई नई चीज़ें बनेगा। तो इन्होंने ये बोला है कि इंडियंस जो हैं वो शुगर बहुत खाते हैं, क्या, सॉरी, सॉल्ट बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं? बहुत। नाउ सॉल्ट, नाउ एक्सेस ऑफ सॉल्ट और एक्सेस ऑफ शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। तो दे आर रिकमेंडिंग कि इंडियन शुड डिक्रीज द इंटेक ऑफ सॉल्ट इन देयर डाइट। मानो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन कहती है कि एक इंसान को दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। पर जो शहर के इंडियंस हैं, अर्बन इंडियंस हैं, है ना, जो शहरों में रह रहे हैं, दे हैव अराउंड 9.2 ग्राम पर डे। याद नहीं करना, बस आप समझो कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम लगभग डबल सॉल्ट ले रहे हैं। रूरल इंडिया में 5.6 ग्राम पर डे। तो रूरल इंडिया की हालत फिर भी ठीक है, पर लेकिन ये भी 5 से तो ज़्यादा ही है। अच्छा, ये इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं क्योंकि जब आप शुगर या लेवल आपका बहुत हाई होता है, या सॉल्ट लेवल आपका इंटेक बहुत हाई होता है, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज विच मीन्स आपको हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस हैं। अच्छा, शुगर या फिर सॉल्ट के हायर इंटेक से आपको बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं,
एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने बस ये बोला है कि इंडियंस प्लीज़ अपना सॉल्ट इंटेक कम करिए। आपके एग्जाम के लिए कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक, समझ में आया? चलो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके बाद ये बता रहा है 2020 में जो भी हमारी मौतें हुई थी देश में, सर्टिफाइड जो रजिस्टर हुई थी डेथ्स, बहुत सारी डेथ रजिस्टर नहीं होती, उसमें 32% इसलिए हुआ था उनको या तो कोई हार्ट डिजीज़ हो गई थी या फिर हाइपरटेंशन बीपी का प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो अब ये देखिए, मोस्टली जो शुगर होता है उसमें सॉल्ट होता है, उसमें कौन सा कंपाउंड रखना? सोडियम। तभी तो आप नमक को बोलते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो दिस दैट इज दैट, यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम इट। बस आप इतना याद रखो कि सॉल्ट हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, तो इसमें 2-3 इनिशिएटिव्स हैं। आप पढ़ना पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, क्यों है इसमें ये बोल रहा है FSSAI एक बॉडी है जिसने ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रखा है कि ईट राइट, अच्छा खाना खाइए। का फुल फॉर्म है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब देश में जो अच्छा खाना मिल रहा है ना, कि भाई खाने का कुछ लेवल होना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो कौन देखता है? FSSAI, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो फूड लाइसेंस सुनते हो, फूड लाइसेंस चाहिए, ये भी कौन इशू करता है? FSSAI। अच्छा, FSSAI अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में काम करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आया? चलो, ये कह रहे हैं कि सॉल्ट यूज़ करिए, पर ऐसा सॉल्ट यूज़ करिए जिसमें सोडियम कम पड़ा हो, है ना। पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करिए, KCl, जिसको आप काला नमक बोलते हो। तो ये कह रहे हैं कि वाइट नमक की जगह आप यू शुड फोकस ऑन काला नमक और KCl। काला नमक होता है पोटेशियम क्लोराइड, सफ़ेद नमक होता है NaCl। काला नमक इज़ हेल्दियर देन सफ़ेद नमक। चलो इसको पढ़ लेंगे एक बार। अब इस पे आते हैं। इंडिया में देखिए, अगर मान लीजिए पहले ना ट्रॉली बैग्स आते थे, पहले बक्से आते थे, जिसमें वो नहीं होते थे। इफ़ आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम X प्लेस टू Y प्लेस एंड हैड टू कैरी माई लगेज, तो पहले बक्से होते थे। बक्से से फिर ट्रॉली बैग्स आ गए, ट्रॉली बैग से फिर बैकपैक्स आ गए, है ना। तो पर्पस तीनों क्या कर रहे हैं? लगेज रखने का। बट तीनों धीरे धीरे हमारी लाइफ को क्या कर ईजी बना रहे हैं। तो इस सेक्टर में इनोवेशन हो रहा है, इसीलिए इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर ये यहीं रुक जाते तो प्रोडक्शन रुक जाता। ये इस पे स्विच किए तो आदमी ने भी स्विच किया, ये इस पे स्विच किया तो आदमी ने भी स्विच किया, जस्ट लाइक आईफोन। सो लेट्स से आईफोन स्विच फ्रॉम 14, 15, 16, हर साल नया लाएगा तो आप खरीदोगे। यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड करूंगा, इनोवेशन इज द की टू इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री की जो चाबी है वो कहाँ पे? इनोवेशन में। आप जितना इनोवेशन करेंगे आपकी इंडस्ट्री उतनी तेज़ भागेगी, आप जितनी नई नई चीज़ें लाएंगे इंडस्ट्री उतना तेज़ भागेगी। तो इंडिया में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा R&D कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तभी नई नई चीज़ें बनाएंगे। तो एक फंड बना रखा है जिसको कहते हैं अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जैसे आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान, जय जवान जय किसान। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें एक चीज़ ऐड की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें एक चीज़ और ऐड की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने एक फंड बना रखा है, इसमें सरकार पैसे डालती है और कोशिश करती है इस पैसे को यूज़ करके R&D देश में बढ़ाई जाए। तो इन्होंने क्या किया है, जो रिटायर्ड साइंटिस्ट होते हैं या रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं कंप्यूटर्स में, IT में, या साइंटिस्ट हैं, वही जो स्टेम इंडस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको हम बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप आइए और हमारा R&D में सहयोग बढ़ाइए, ताकि हमारी देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। समझ में आया? तो यही है PM प्रोफेसरशिप्स स्कीम। चलो, क्या कह रहे हैं कि भाई आप आओ, हम आपको 30 लाख पर एनम तक सैलरी देंगे। रिसर्च करने के लिए आपको 24 लाख देंगे, क्यों? आपको रिसर्च करने के लिए नई नई चीज़ें चाहिए ना, नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अपने लिए खर्चा चाहिए तो 1 लाख वो भी देंगे। 5 साल तक आपको नौकरी फिक्स रहेगी, पर उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखेंगे। कौन लोग आ सकते हैं? रिटायर्ड साइंटिस्ट आ सकते हैं, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, या ऐसे प्रोफेसर्स आ सकते हैं जो इन सब फील्ड्स में लेक्चर वगैरह देते हैं। या फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें NRI भी आ सकते हैं, जो इंडियंस बाहर चले गए। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। ऐसे लोग जैसे मेरे दादा, चलो मान लो US चले गए, मैं US में पैदा हुआ तो मैं हूँ तो US सिटीजन, लेकिन मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हूँ। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं, तो ये सारे लोग भी एलिजिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसको पढ़ने के लिए जो जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पहले 60,000 रुपये महीना ही देते थे, अब उसको हमने बढ़ा दिया ताकि अच्छे से अच्छे लोग इसमें ऐड हो सके। चलो इसके बाद 16 जुलाई मतलब कल, 16 जुलाई एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज AI अप्रिसिएशन डे। अब ये हम और आप सारे समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? ऑल ऑफ दीज आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इज अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। कल भी मैंने इस पर आपसे बात की थी।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए वाई दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू इंडिया, हाउ विल दिस हेल्प अस, एक हमने 16 जुलाई को वी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एआई अप्रिसिएशन डे। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज़। इफ़ यू वांट यू कैन रीड, हमने पूरी हिस्ट्री ट्रेस कर दी है कि 1960 में कंप्यूटर पे रिसर्च शुरू हुई, 90 में हम थोड़ा थोड़ा एआई के बारे में जाने, 2018 में नीति आयोग ने एआई की स्ट्रैटेजी, पूरा एक हिस्ट्री ट्रेस है कि एआई इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हुआ है। एग्जाम के लिए वी डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर 16 ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे। आज की सबसे, आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा। बुलेट ट्रेन ऐसी ट्रेन होती हैं विच कैन रन फॉर अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 300 किलोमीटर पर घंटा। सो लेट्स से इफ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, आई माइट रीच दिल्ली इन लेस देन 2 आवर्स। तो बुलेट ट्रेन हैं। नाउ जापान इज फेमस फॉर इट्स बुलेट ट्रेन। इंडिया एंड जापान शेयर अ वेरी गुड रिलेशन। इंडिया एंड जापान फॉरेन रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जापान ने ना क्या इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बुलेट ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ तक, ये चलेगी सबसे पहले, आगे भी अलग अलग स्टेट्स में बनेंगे, बट अभी इन्होंने बोला है दिस विल रन फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, अहमदाबाद टू बॉम्बे। अब ये जो तुम्हारी वो होती है ना बुलेट ट्रेन, ये इनका जो मोटर होता है इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आपने देखा होगा जब कुछ कुछ आपने ट्रेन देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं, ऊपर एक सप्लाई दी होती है, ऐसे ऐसे तार होता है, इस सप्लाई से ही ये ट्रेन चल रही होती हैं। अच्छा, ये जो इसका आगे का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा एलिवेटेड होता है, ये थोड़ा एलिवेटेड होता है, ये दिस मेक्स अस श्योर दैट दीज ट्रेन्स आर प्रोन नॉट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, मतलब अर्थक्वेक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अच्छा, जापान की टेक्नोलॉजी बता रखा है आपको, जो जापान है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आता है, देखना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो वहाँ जापान भी है, तो जापान में अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने अपने ही हिसाब से ट्रेन बनाई है। बॉम्बे, गुजरात में भी अच्छा थोड़ा बहुत देखो, भुज में अर्थक्वेक आया था, तो ये वाला जो मॉडल है ना, इससे हम ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है, ये सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही होती है। अच्छा, ये जो होता है ट्रैक होता है, अब क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रिक मोटर है, तो ये ना ऐसे ट्रैक बनाए जाते हैं कि ये बहुत स्मूथ रन कर सके। कैसे रन कर सके? स्मूथ, नॉइस कम हो। वाटर मोटर कम यूज़ किया जाता है, जिससे नॉइस कम हो जाती है। अब तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, है ना। तो अब इंडिया कौन सा यूज़ करने वाला है? E10 शिनकानसेन। अब देखो इसमें ना अभी जापान में जो मॉडल चल रहा है वो चल रहा है E5 शिनकानसेन, अभी जो जापान में चल रहा है। अब जापान में भी लॉन्च होने वाला है कौन सा? E10। तो इसी से पता चलता है इंडिया एंड जापान शेयर वेरी गुड रिलेशन। चाहता तो जापान हमें E5 देता, पर अपने वहाँ पे भी वो कौन सी ला रहा है? E10। और इंडिया में भी साइमल्टेनियसली कौन सी लॉन्च हो रही है? E10। तो E10 शिनकानसेन इज द ट्रेन दैट विल बी ऑपरेटेड एज बुलेट ट्रेन। आप याद रखो, E10 शिनकानसेन क्या है? बुलेट ट्रेन का नाम है। जो ट्रेन है स्पेसिफिकली, ये ट्रेन है E10 शिनकानसेन। कहाँ की है? दिस इज फ्रॉम जापान, दिस इज फ्रॉम जापान। न्यूज़ पढ़ो, रिसेंटली जापान हैज अग्रीड टू प्रोवाइड E10 शिनकानसेन ट्रेन्स ऑन द मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में कौन सी ट्रेन यूज़ होगी? E10 शिनकानसेन। से क्या होगा? अच्छा, एक 21 किलोमीटर का टनल बन गया, याद नहीं करना, वो बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी विल बी एबल टू फाइनलाइज दिस। अच्छा, एक लाइन यहाँ कितनी बढ़िया लिखी है, द E10 शिनकानसेन जापान नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन, मतलब जापान में पहले भी थी, ये नेक्स्ट जनरेशन E5 चलता है वहाँ, E10 जो है। दिस मॉडल विल डेब्यू साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड जापान, मतलब जिस दिन जापान में उतरेगा E10, वहीं इंडिया में भी E10 उतर रहा होगा, सिंबलाइजिंग डीपनिंग टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इससे ये तो पता चलता है अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये तो चाहता तो जापान E5 दे देता। चलो, तो दैट इज दैट। हाँ, अब यहाँ से आप देख लोगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है, इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं इस तरीके से, जिससे पावर सप्लाई बनी रहती है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, जिस वजह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती है ये ट्रेन। बहुत ज़्यादा हमें इसकी टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन, जस्ट हैव टू रिमेंबर द मॉडल, वेयर आर वी गेटिंग इट फ्रॉम, and I hope you are enjoying this sessions. If you are liking, if you are like actually liking these sessions, please try to subscribe to the channel, share to more and more people who might find this helpful, and try to be regular to these videos. For now, thank you so much. I'll see you tomorrow now. Thank you. Bye.